Welcome student and very warm morning to you all. Today we are going to discuss about something new, something very interesting, and that is polar coordinate system. Up to the last lecture we have seen what is meant by the Cartesian coordinate system, what is meant by the rectangular system. Now today we are going to discuss polar coordinate system. So what exact inside the polar coordinate system? देखिए बहुत कुछ यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो कल तक के, इट मीन्स लास्ट वीडियो तक के हम लोगों के पास the point of intersection of the x and y axis, again I repeat, the point of intersection of x and y axis is called as the origin, and when we are surviving in this system, this is called as a pole. इसका नाम ही बदल गया, called as a pole. Now read here. Consider O as the origin and OX as the x-axis. So any point P is on the plane. Length of OP is equal to R, no doubt. Length of O to P is known as the R. Okay. Move onward. Ordered pair R comma theta determines the position of point P. Here R, theta are called polar coordinates. Fixed point P, ये जो fixed point P है is called as the pole. And fixed ray, it means x-axis. This x-axis is called as polar axis. इसे क्या बोला जाता है? तो polar axis. Now the Cartesian coordinates is given by relation x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Again I repeat, what is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta when we are, क्या करेंगे हम लोग? तो when we are square, सबसे पहले स्क्वायर बना लो. सो x इज इक्वल टू r cos थीटा का स्क्वायर हुआ बेटा x स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हेन y इज इक्वल टू r sin थीटा का स्क्वायर हुआ इट बिकम्स y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. Now adding these both the equations, so in the LHS we are getting x square plus y square. Now r square cos square theta, r square sin square theta, what is common? So r square is common. In a bracket, cos square theta plus sin square theta. And cos square theta plus sin square theta is equal to 1. 1 into r square, We are getting the relation. क्या relation मिला है हमें? So r square is equal to x square plus y square. मुझे r स्क्वायर फॉर्म नहीं होना क्योंकि रेडियस दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ r. टेकिंग द स्क्वायर रूट इट बिकम्स r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस वन इज योर फर्स्ट रिलेशन. मूव टू द सेकंड पैटर्न. सो वी आर गेटिंग tan theta is equal to y upon x, and this system is known as Cartesian coordinate system. Now see some example. क्या याद रखोगे बेटा, उसके ऊपर ध्यान. आपको 12th स्टैंडर्ड में भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एग्जांपल्स है. तो व्हेन आज से कार्टेशियन, तो ये बन गए x इज इक्वल टू r cos थीटा. यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं, ठीक है. y इज इक्वल टू r sin थीटा. कीप इन द माइंड, रट लो इन्हें, पढ़ लो इन्हें, कैसे भी पण याद रखो 2 साल के लिए. That is x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and also r is equal to under root of x square plus y square, and theta is equal to tan inverse of y upon x, या फिर tan theta is equal to y upon x. आप कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, ठीक है. नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन. फाइंड, कौन से कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए बोल रहा?
तो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। कौन से कोऑर्डिनेट देखे तो कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किससे डिनोट होते हैं तो x, y से। x, y की वैल्यू कितनी है तो 3, 3 है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू आल्सो 3। हमें सबसे पहले ढूंढना होगा r। r के लिए फॉर्मूला क्या तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो x it means 3 square, y means 3 square, 3 square plus 3 square that is 9 plus 9, it is the 18, 18 also be written as 9 into 2, value of r is equal to 3 root of 2। ये वैल्यू किसकी हुई तो r की हुई। पहला पोलर कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। When we are going to find out the next value that is tan theta. So tan theta having the formula y upon x, value of y is equal to root 3, x also root 3. Root 3 upon root 3 it's a simply 1. It means tan theta is equal to 1. देखो अभी आपको क्या लॉजिक बता रही। ये ढूंढिए कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट यूनिट में हम लोगों ने जो वैल्यूज पढ़े 30 की ये, 45 की वो, 60 की वो, 90 की वो, वैसे ही tan का कौन सा एंगल है बेटा जो आपको 1 वैल्यू देता है तो आपको याद आएगा कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और अगर tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, इसी का मतलब थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। 45 को रेडियन में कितना कहा जाता है उतना तो पढ़ ही गए हो। कितना कहा जाता है तो π/4 एंड इट्स अ रेडियन। नाउ लुक एट दिस, क्या क्या वैल्यूज दिए थे सी। x is equal to 3, y is equal to 3. To find the r and theta, so revising all these values, and as x and y both the coordinates are positive, it means we are lies in which quadrant? So first quadrant, and in the first quadrant measurement from 0 to 90. Therefore, we are getting theta is equal to how much? So 45. Now let's going to start our exercise. सबसे पहले ये जानिए कि एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन देखे उसमें क्या क्या दिया हुआ और जो दिया है उससे फिर हम लोग जुगाड़ जमाते आगे का क्या क्या करना है उस पे। नाउ सी, फर्स्ट वन इज 2 sin a इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। देखो पहला गिवन, बड़े ढंग से लिखेंगे अपन। गिवन क्या क्या गिवन बेटा तो 2 sin a is equal to 1 and this value again equal to कितना तो √2 cos b। समझे क्या क्या दिया हुआ है वो भी एक बार नजर कर लो। हमें दिया है कि π/2 लेस देन a लेस देन पाई। इट मीन्स हम लोगों को पहली कंडीशन मिल रही है यहाँ पे कि a लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर जब हम लोग सामने गए हमें पता चल रहा 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π। इट मीन्स b लाइज इन विच क्वाड्रेंट सो थर्ड क्वाड्रेंट। हो गया, ये निपट गए यहाँ पे। फिर सोच लो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है tan tan cos cos। दो वैल्यूज हमें होना है, दो वैल्यूज के लिए हम लोग अभी यहाँ पे जुगाड़ जमाएंगे। नाउ सी, जो दिया हुआ है जो हमारे पास है उसका जितना हो सके उतना पोस्टमार्टम करा लो। आधे अधूरे टर्म पकड़ो। सो आधे अधूरे टर्म में हमारे पास बेटा 2 sin a इज इक्वल टू 1। मैंने आधी ही टर्म ली। अगर मैंने हाफ ऑफ टर्म कंसीडर की है तो इससे मुझे वैल्यू मिलेगी sin a की। sin a की वैल्यू कितनी बन गई 1/2। समझ रहा क्या रे, ये हो गई sin a की वैल्यू कितनी हुई तो 1/2। sin a हमें नेक्स्ट वैल्यू किसकी देगा तो cos a।
क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमारा फॉर्मूला हुआ. नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. इट मीन्स 1 माइनस साइन a 1/2 एंड इट्स स्क्वायर. अभी 1/2 स्क्वायर कितना हुआ बेटा? तो 1/4. इधर उधर टर्म को पलटा दो. सो 1 माइनस 1/4, 4 into 1 4, minus 1 upon 4 and 4 minus 1 it's a 3. So value of cos square a is equal to कितनी हुई? cos square a is equal to 3/4. ये सिंपली वैल्यू हुई cos a की. Therefore cos a is equal to under root of 3/4. याद रखोगे आप कि जब हमें वैल्यूज निकालनी है, जब हमें रूट को हटाना है तो स्क्वायर करना है, और जब हमें स्क्वायर को हटाना है तो टेकिंग द रूट करना है. सेम वैसे ही किया मैंने यहाँ पे. ये टर्म होने के बाद आपके पास cos a gives us the two possibility plus minus root 3/2. बन गए दो पॉसिबिलिटी, प्लस भी है और माइनस भी है. पर ये सोचो बेटा a कौन से क्वाड्रेंट, दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट a lies in which quadrant? So a lies in second quadrant. और जैसे कि हमें पता है इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos फंक्शन कैसे? तो cos फंक्शन निगेटिव, यानी प्लस और माइनस में से कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग? माइनस. सो वी आर गेटिंग cos a इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2. पर क्वेश्चन तो हमें बेटा tan मांग रहा, तो tan a which is nothing but the sin a upon cos a. Now substitute the value. What is the value of sin a? It's a 1/2. What is the value of cos a? So minus root 3/2. Upon 2 get cancel. What is left? It means tan a has value minus 1/√3. ये पहला हो गया हमारा, समझ रहे? दिस वन इज अवर फर्स्ट की वैल्यू ऑफ tan a कितनी बनी? तो minus 1/√3 बनी. अभी सेकंड पोर्शन के तरफ अगर जाते हैं बेटा तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या अवेलेबल है? 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू cos b. अभी बोलना मैडम ये कहां से ला लिए? तो देखो पहले मैंने आधा पार्ट उठाया इसका, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू रूट 2 cos b. पहले मैंने ये आधा पार्ट उठाया, फिर इसको निपटा लिए, फिर बचे हुए आधे पार्ट के तरफ गए, और फिर अभी दोनों के साथ इक्वलिटी. अगर ये पॉसिबिलिटी है इट मीन्स cos b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2. समझे वैल्यू? cos b अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो हाउ टू फाइंड द साइन b? अगेन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी. सो व्हाट इज अवर आइडेंटिटी? नाउ यूजिंग साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b. दिस इज 1 माइनस 1/√2 इट्स स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर कितना? तो 1/2. एक में से आधा गया आधा. दिस इज द वैल्यू फॉर साइन स्क्वायर बी. ये किसकी वैल्यू हुई? साइन स्क्वायर. अपने को स्क्वायर नहीं होना, क्या करेंगे? तो स्क्वायर रूट लेंगे. इट मीन्स साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2. अंडर रूट ऑफ 1/2. फिर से वो भी रूट में चल रही, इसका मतलब दो वैल्यूज लेंगे. सो साइन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. अभी बेटा फिर से बैक जाओ और देख लो कि आपके पास b lies in which quadrant. So as per the question b lies in 3π/2, so 2π. It means b lies in which quadrant? So it is lies in fourth quadrant. Now accordingly values डालो. अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा?
तो निगेटिव, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन बी इज इक्वल टू -1/√2, क्योंकि कॉस पॉजिटिव और साइन कैसा निगेटिव, वैल्यूज दो बेटा। Therefore tan b, which is the ratio of sin b upon cos b. Now the value of sin b is -1/√2. Value of cos b is 1/√2. So 1/√2, 1/√2 get cancel. Value of tan b is equal to कितना, तो is equal to -1. अभी ये सब वैल्यूज के साथ ये देख लो कि हमें सॉल्व किसे करना। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, सो वी आर गेटिंग -1 क्रॉस किया बेटा यहाँ पे -√3 अपॉन √3, अगेन हैज अपॉन √3 into √2, it's √6 with the -2 अपॉन √2। और इसको जितना चाहे उतना आप सॉल्व करा सकते हो, वैल्यूज को आप रैशनलाइज करा सकते हो। इट मीन्स वी आर गेटिंग -1 + √3 अपॉन √3। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका मतलब -2√2 अपॉन √6 + 2। नाउ क्या टर्म माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, +1 + √3 into 2√2 अपॉन √3 into √6 + 2, and this is about our first question from the exercise. Now move to the next question. Second question beta, if sin a upon 3 is equal to sin b upon 4 is equal to 1/5 and a b are the angles in which quadrant, so second quadrant, then prove that 4 cos a plus 3 cos b is equal to -5. नाउ एक एक टर्म को लेते हैं। आपने 9th 10th में बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी पढ़े हो। अकॉर्डिंग टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हम लोग पहला टर्म उठा लेते हैं, साइन ए के अपॉन में कितना है 3, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/5। फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू सेकंड रेशियो इज इक्वल टू थर्ड रेशियो, सो देयरफॉर फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो आर इक्वल। अपॉन वाले 3 को उधर पलटा दीजिए, सो sin 3 इज इक्वल टू 3/5, दिस इज द वैल्यू। पर हमें तो वैल्यू होना है cos की, अगेन यूजिंग द टर्म्स, सो cos square a इज इक्वल टू 1 - sin square a, and the sin a has value 3/5 square, 1 - 9/25, so क्रॉस करो बेटा, 25 - 9 अपॉन 25, वैल्यू ऑफ cos square a इज इक्वल टू 16/25। आ गई एक वैल्यू। ये cos square a की वैल्यू, हमें तो सिर्फ cos a होना है, इट मीन्स क्या करना होगा, सो टेकिंग द रूट, इट मीन्स cos a इज इक्वल टू √ 16/25 and root of 16/25, it means 4/5. This is our first one. cos a की वैल्यू कितनी मिली बेटा हमें, तो 4/5। पर देख लो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज के साथ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, रीजन देंगे हम लोग कि इन सेकंड क्वाड्रेंट cos कैसे रहता है, तो cos निगेटिव रहता है, एंड दैट्स व्हाई the value of cos a is equal to -4/5. Remember this. cos a की वैल्यू कितनी हो गई, तो -4/5. Move to the next one. sin b, हमारे पास एक वैल्यू मिल गई बेटा, cos a it's a -4/5. Move to the second. सेकंड में हमें क्या बोला गया है कि sin b के अपॉन में कितना 4 इज इक्वल टू 1/5। फिर से इधर उधर टर्म्स को लेके चलिए, सो sin b इज इक्वल टू 4/5 बाय यूजिंग द फॉर्मूला cos square b इज इक्वल टू 1 - sin square b, बट sin b हैज वैल्यू 4/5 एंड स्क्वायर ऑफ 4/5 इज 16/25। फिर से करो बेटा, 25 - 16/25।
25 माइनस 16 कितना, तो 9/25। और ये तो cos स्क्वायर b की वैल्यू है, हमें तो cos b होना, जो बन जाएगा रूट ऑफ 9/25। और 9/25 के दो वैल्यूज प्लस माइनस 3/5। पर प्लस माइनस 3/5 में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हम लेंगे -3/5। It means we are getting the two term cos b is equal to -3/5. Again the same reason, that is we are surviving which quadrant, so we are in the second quadrant where cos function is negative. क्या वैल्यूज ढूंढनी है बेटा, हमें प्रूफ करने के लिए बोल, प्रूफ करने के लिए LHS कंसीडर करेंगे जिसमें वैल्यूज है 4 cos a प्लस 3 cos b, ठीक है। और ये चलो 4 इन ब्रैकेट कितनी वैल्यू है आपकी cos a की, सो -4/5 प्लस 3 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ cos b -3/5। मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, 4 इंटू -4 -16/5, 3 इंटू -3 -9/5, दैट इज इक्वल टू -16 -9 कितना, तो -25। और -25/5 का मतलब हुआ -5, विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ये इतना आसान था। नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? इन द क्वेश्चन नंबर 3 tan a इज इक्वल टू कितनी है बेटा, tan a की वैल्यू तो 1/2 है। और 1/2 जब वैल्यू है तो हमें इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा, सी tan थीटा हैज वैल्यू 1/2, ये देखे है यहाँ पे। उसके बाद वैल्यू जिसकी निकालनी है वो टर्म क्या, तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन कितना, तो 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। हो गए ऐसे वैल्यूज। tan होना है यानी साइन अपॉन कॉस होना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करा लेंगे, सो डिवाइडिंग बाय cos थीटा। जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करा लिए, टर्म्स बन जाएगी 2 tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा गेट कैंसल, सो प्लस 3 अपॉन 4 tan थीटा अगेन प्लस 3। इतने वैल्यूज हो गए बेटा। पर tan थीटा कितना था, तो 1/2 था, प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 1/2 प्लस 3। यहाँ पे देखिए क्या क्या काट छाट हो रही, 2 गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 प्लस 3 ये बना 4 और 2 प्लस 3 ये बना 5। So our required value is 4/5. Now when we are moving to the next question, that is eliminate. किसे eliminate करना है, तो थीटा को। किसे गायब करना है, तो थीटा को। क्यों गायब करना है थीटा को, क्योंकि हमें दिया हुआ पैटर्न वैसा कि इलिमिनेट करो ऐसा। ना चलो बेटा इसको भी निपटा लेते फटाफट। फर्स्ट इसमें दिया है x इज इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा, सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। हो गए दो वैल्यूज। अभी अगर x इज इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा, इट मीन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 3, y इज इक्वल टू 4 tan थीटा है, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 4। क्या ये दो मिला के कोई रिश्ता बनाते हैं, तो नो डाउट बनाते ही है। क्या रिलेशन रे, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, which is also be written as secant square theta minus tan square theta is equal to 1। ठीक है, वैल्यू कितनी दिख रही secant थीटा की, तो x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस tan थीटा y अपॉन 4 स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू
1। x अपॉन 3 स्क्वायर को लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्या कहीं पे भी आपको थीटा नजर आ रहा? नहीं। अगर थीटा नहीं नजर आ रहा इसका मतलब थीटा क्या हो गया? गायब। गायब हुआ इसी का मतलब थीटा क्या हुआ? तो इलिमिनेट हुआ। वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। इन द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द 4 x is equal to which values are given? x is equal to 6 cosec theta. It means cosec theta is equal to x upon 6. हो गई बेटा वैल्यू। Second, one more value is given, that is y is equal to 8 cot theta. It means cot theta is equal to y upon 8. हो गए दो अलग अलग वैल्यूज। क्या आइडेंटिटी है तुम्हारे पास? है कोई आइडेंटिटी? सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, विच इज आल्सो बी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना? तो 1। बोलो बेटा कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? तो x अपॉन 6 स्क्वायर। कॉट की वैल्यू कितनी मिल रही? तो y अपॉन 8 स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। नाउ x अपॉन 6 स्क्वायर को क्या लिखोगे? तो x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 64 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। थीटा गायब, इट मींस एलिमिनेट द थीटा। नाउ सी ऑन द बुक। आपके पास 3 क्वेश्चंस और बचे विच इज ऑन द एलिमिनेट द थीटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। स्क्रीनशॉट लोगे आप और ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0. Very important question in the point of your NDA examination. So 2 sin square theta plus 3 sin theta and this value is equal to कितना है? तो 0 है। क्या कॉमन नजर आ रहा है LHS में से? तो साइन थीटा। क्या ब्रैकेट में रह जाएगा? दैट इज 2 sin theta plus 3 is equal to 0. Which 2 possibilities are there? So first one, sin theta is equal to 0 and second 2 sin theta plus 3 is equal to 0. But क्या sin theta is equal to 0? हाँ ये हो सकता है, ठीक है। पर 2 sin theta plus 3 is equal to 0, that is 2 sin theta is equal to minus 3, sin theta is equal to minus 3/2। और हमें पता है 3/2 का मतलब होता है 1.5, दैट इज माइनस 1.5। जैसे कि हमें लास्ट लेक्चर से ये चीज पता चली कि साइन थीटा के लिए कौन से वैल्यू परमिसिबल रहते हैं? दोज आर इन बिटवीन -1 to 1। तो क्या -1.5 ये -1 और 1 के बीच में आती है? तो नहीं। इट मीन्स हमारी परमिसिबल वैल्यू कौन सी हुई? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। पर देखो यहाँ पे ढूंढो किसे बोल रहा? तो कॉस को। चलो कॉस के लिए ढूंढते। नाउ 2 वैल्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वन, अगर साइन थीटा 0 है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपकी आइडेंटिटी है बेटा। इट बिकम्स 1 माइनस 0 स्क्वायर, इट्स बिकम 1, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यस, हो सकता है। सेकंड, अगर आप साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 लो, फिर से कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस 3/2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/4। और रूट ऑफ 9/4 आपको आंसर देगा -5/4, विच इज नॉट रियल। ये क्या नहीं है? तो रियल नहीं है। इसका मतलब
the value for cos theta is plus minus 1. This is about your question number 5. Similarly, when we are discussing for the question number 6, it's very important to solve by using the quadratic. So मान लिया बेटा कि cos theta यानी x है, ये सिर्फ माना हम लोग ताकि क्वेश्चन हमारे कंफर्ट जोन में जाके सॉल्व कर पाए, इसलिए दिया हुआ इक्वेशन क्या, तो 2 cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट, उसके बाद माइनस 11 cos थीटा एंड देन प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, cos थीटा यानी कितना, तो x क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 is equal to 0. Two numbers having the product 10 and sum is the minus 11. It's a 2x square minus 10x minus 1x plus 5 is equal to 0. What is common? So 2x common. Bracket में रहा x minus 10. Bracket में रहा आपके पास, फिर सेकंड इसमें से कॉमन क्या, तो माइनस 1 इन अ ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. टू पॉसिबिलिटीज आर x माइनस 5 एंड सेकंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड 2x इज इक्वल टू 1. सो दिस बिकम x इज इक्वल टू 1/2. फिर से वही बेटा, cos थीटा भी कहां से कहां तक, तो माइनस 1 से 1 तक. क्या x इज इक्वल टू 5 यानी cos थीटा इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू परमिसिबल हुई क्या, तो नहीं, इट मींस नॉट इक्वल्स टू 5. देयरफॉर परमिसिबल वैल्यू इज cos थीटा इज इक्वल टू ओनली 1/2. एंड दिस आर first 6 question from your exercise 3.1. Now tomorrow we will going to discuss remaining question from our exercise.